अस्सलाम वालेकुम क्लास। यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द बायोफिल्म और हमने बात की थी कि बायोफिल्म होती क्या है, उसकी कंपोजिशन की बात की थी एंड वी मेनली लिमिट आवर डिस्कशन टुवर्ड द एडवांटेजेस ऑफ द बायोफिल्म फॉर द मैन एंड फॉर द members of the biofilm themselves. Today we shall discuss about the formation of biofilm, that how biofilm is formed and what are the factors that can affect the biofilm. This information is very important because most of the time we are interested in the removal of biofilm or we are interested in the formation of biofilm. For example, for the processes which are beneficial to us or where the biofilm formation is advantageous to us, we will confer those conditions or we will provide those conditions to the microorganism that they will form the biofilm. And for those conditions in which biofilm are harmful for us, for example in the case of organ transplant or in the case of pipes or pipe clogging or lots of other examples that we have taken yesterday, in these cases we will definitely try that biofilm will not form. So the factors that affect the biofilm, its formation and that can lead to the destruction of biofilm, that are very important for us to understand them. So first we shall study the formation of biofilm, how exactly biofilm will form. There are 4 stages of biofilm formation, and what are these stages? Very first thing is that biofilm is generally formed on the chemically inert surfaces and in living tissues. If biofilm is forming in the living tissue, it will have a different conformation, and if it is forming on chemically inert phase that has nothing organic with it, then it will take different form. Now the difference is lie in the adhesion phase, but first we shall see that there are 4 stages of biofilm formation. Very first phase is called as transport. First phase is called as transport, then adsorption of molecule, then adhesion, and lastly colonization. Transport, as the name implies class, transport simply means that in that particular place where the biofilm is going to be formed, it can be anything, that can support the adhesion or that can support the formation of matrix. So that phase, the very first thing is that microorganisms, even a single population or few of the populations of microorganisms transport in that surface. और ये किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एयरबॉर्न ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कोई भी जो आप ये कह सकते हैं कि कंटामिनेटेड जो आपका यूटेंसिल है, कोई भी कंटामिनेटेड प्लेस है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। जैसे कि एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आप बहुत सी यूज़ कर रहे, सीजर्स यूज़ कर रहे हैं, आप स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं, उनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो फर्स्ट फेज इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो बहुत से प्रोसेसेस जिसमें अभी हमने जैसे डिस्कस किया, तो वो इस पर्टिकुलर सरफेस पर आते हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड फेज इज़ एड्जॉर्प्शन। एंड व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन में क्या है, एड्जॉर्प्शन में सॉलिड लिक्विड इंटरफेस होता है और एक कंडीशनिंग फिल्म बनती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो here you can see in this diagram, ये microorganism और ये this is first phase which is the transportation and this one is the second which is adsorption. What will happen in adsorption? Here you can see the green molecule, that is particulate material, and red is bacteria. Now you can see that what will happen in adsorption, that there is solid liquid interface. These bacteria, they utilize the chemical properties of the substrate और ये substrate की chemical properties को utilize करेंगे उसको ताकि एक matrix बन सके, और ये एक conditioning film जो है वो बनेगी, जिसमें क्या होगा
कि जो ये इंटरफेस पर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन मौजूद है उसे माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करने के बाद माइक्रोब जो है वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब जब जैसे ही एड्सॉर्प्शन हो जाएगी उसके बाद थर्ड फेज इज़ दी adhesion. Now this adhesion is of two types. One is the reversible adhesion and the other is the irreversible adhesion. At very first, what will happen in reversible stage, there is simply Brownian movement. A Brownian movement, you already know about the Brownian movement, that is the random movement. कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सरफेस के ऊपर आकर अटैच हो रहे हैं, फिर डिटैच हो रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, देन अगेन आकर अटैच हो रहे हैं। तो ये जो एडेजन है दैट इज़ द रिवर्सिबल एडेजन। एट दैट स्टेज, रिवर्सिबल एडेजन की स्टेज तक यू कैन ईजिली रिमूव द बायोफिल्म बाय any detergent, by any kind of biocide or anything, by simple wiping off आप इन माइक्रोब को रिमूव कर सकते हैं at the stage of reversible adhesion. But after that stage there is second stage, that is the irreversible adhesion, and this irreversible adhesion is by the specialized chemical. These chemical confer the properties to these microbes that they attach with that substrate permanently, but through the different kind of adhesive molecules. और ये जो एडहेसिव मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि लेसिथिन्स हो सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो बाइंडिंग एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ बाइंडिंग एजेंट्स बैक्टीरिया खुद प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जो है वो सरफेस प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन ये जो एडहेजन है ये जब बिल्कुल बैक्टीरिया की सरफेस के साथ इरिवर्सिबल एडेजन हो जाए तो इस वक्त बायोफिल्म फॉर्मेशन जो है वो टेक्निकली स्टार्ट हो जाती है। अब इस वक्त ये जो एडेजन है, जो परमानेंट एडेजन है या इरिवर्सिबल एडेजन है, दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सरफेस एंड द ईपीएस। व्हाट काइंड ऑफ ईपीएस दैट दीज बैक्टीरिया आर यूटिलाइजिंग। कुछ ईपीएस में एडेजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और कुछ ईपीएस में एडेजन जो है वो बहुत ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो सरफेस प्रॉपर्टी है कि किस सरफेस पे माइक्रोब जो है वो एडेजन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन ईजिली इमेजिन दैट इफ़ द सरफेस इज़ ऑर्गेनिक, समथिंग ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन, then that surface is rich with the nutrients. So these surface provide very strong adhesion. But if surface is chemically inert like any wall or petri dish that has very few thing organic in them, then in that case the adhesion is not very strong, then this kind of adhesion can be removed easily. So lastly, the last phase is called colonization. In colonization, as the name implies, there is simply the number of colonies that are going to be increased, और बैक्टीरिया जो है वो colonize करना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से अपना नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है और बायोफिल्म की थिकनेस जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। Now one thing is very important in that case, that the जो ईपीएस बनता है या जो बायोफिल्म बन रही है उसमें जो ईपीएस रिलीज़ हो रहा है, ये ईपीएस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ फेज़ क्या है। जनरली ईपीएस रिलीज़ किया जाता है एट द एंड ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज़ और ड्यूरिंग दिस स्टेशनरी फेज़। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द 4 फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें जैसे ही एक्सपोनेंशियल फेज़ ख़त्म होती है तो स्टेशनरी फेज़ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ जो बर्थ हैं वो इक्वल हो जाते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज़ में तेज़ी से नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज़ ख़त्म होती है तो ईपीएस जो है वो रिलीज़ किया जाता है, और ये ईपीएस जो है इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये ईपीएस की फॉर्मेशन क्या होगी, क्योंकि ये किस किस्म की बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, दैट विल फॉर्म दी पर्टिकुलर ईपीएस। अब इसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि जनरली जो कॉलोनाइज़र सेल होते हैं, जो अर्ली सेल्स होते हैं, वो होते हैं स्टार्विंग बैक्टीरियाज होते हैं। दे विल फॉर्म दी प्राइमरी कॉलोनाइज़र्स। नाउ
you can easily imagine that when there are few number of bacterial cells, then there are lots of nutrient in that place. So why there are the starving bacteria that are becoming the primary colonizers, since there are lots of nutrients available? So normal bacteria, they can also inhabit in that place, but why there are the starving bacteria that form the primary colonizer? There is very important significance in them. प्राइमरी कलोनाइजर स्टार्विंग बैक्टीरिया इसलिए होते हैं क्योंकि स्टार्विंग बैक्टीरिया एज देयर नेम implies they utilize very limited nutrients. While they utilize limited nutrients, so it means that there are lots of nutrients left for the other bacteria to come here and to colonize in that particular place. तो इस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलोनी ज़्यादा होती हैं और बायोफिल्म जो है वो तेज़ी से उसमें इजाफा हो जाता है, वो बहुत उसका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है. इस तरह से ये जो है ये प्राइमरी कॉलोनाइजर्स की सिग्निफिकेंस है. इट मे बिकम एज शॉर्ट क्वेश्चन टू यू. शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि प्राइमरी कॉलोनाइजर्स जो हैं वो स्टार्विंग बैक्टीरिया क्यों होते हैं, या इरिवर्सिबल जो बॉन्डिंग है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो आप बताएंगे कि ये दो फैक्टर्स हैं, EPS दैट इज़ रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया, एंड सेकेंड थिंग इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस ऑन विच द बायोफिल्म is going to be formed. So once biofilm is formed, it's a dynamic entity, not a static one, क्योंकि इसमें continuous change आता रहता है. और वो change कैसे आता है? Here you can see in this diagram, which is 7. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बायोफिल्म है उसकी थिकनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, और क्योंकि सेल तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गई हैं, तो और बैक्टीरिया आए, और कॉलोनीज़ आ गई हैं, और पॉपुलेशंस बैक्टीरिया की आ गई हैं जो कि यहाँ पर ग्रो करते जा रहे हैं. यहाँ एंड पर आप देख सकती हैं कि यहाँ कुछ सेल्स जो हैं वो येलो हो गए हैं, येलो में डिस्क्राइब किए गए हैं. नाउ दीज सेल्स आर क्वेसेंट सेल्स. व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये थिकनेस ज़्यादा होती चली जाती है, ये जो सरफेस पे सेल्स हैं इन्हें तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये जो डीपर लेयर के सेल्स हैं इन्हें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम से कम मिलना शुरू हो जाते हैं. तो जैसे ही ये जो सरफेस पर माइक्रोब मौजूद है, इनके पास इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि ये ग्रो भी कर सकें और रिप्रोड्यूस भी कर सकें, तो ये तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. लेकिन ये जो सरफेस पे सेल होते हैं, ये जो बॉटम के सेल्स हैं, इनके पास सिर्फ इतनी न्यूट्रिएंट्स होती है दैट दे कैन only maintain themselves. They are unable to reproduce themselves. Then what happened? Then nutrients become so low that even nutrients are not available for their maintenance. So in that case these cells become quiescent cells, और इसीलिए इन सेल्स को, इन quiescent cells को जो है वो येलो से शो किया गया है. यहाँ पर आप देखें जैसे ही थिकनेस मज़ीद ज़्यादा हो गई है, नाउ व्हाट हैपन कि कुछ सेल्स जो हैं वो quiescent हो गए हैं. नाउ सम ऑफ द सेल्स आर शोन इन ग्रीन. द ग्रीन स्टेजेस आर शोइंग दैट दीज सेल्स आर गोइंग टू डाई. अब कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो गए हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इतने कम हो गए हैं कि वो अब उनकी मेंटेनेंस के लिए भी बिल्कुल काफ़ी नहीं है. तो यहाँ पर ये जो रेड फेस दिखाई गई है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं फॉर द ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनेंस, फॉर रिप्रोडक्शन. और आहिस्ता आहिस्ता जो है जब लेयर ज़्यादा थिक होती जाती है तो नीचे वाली सेल्स जो हैं दे आर डिक्लेयर्ड एज quiescent. दे कैन हार्डली मेंटेन themselves to live, but after that when nutrients become so low that bacteria are unable to maintain themselves, then they become to die. There are lots of other factors that are also involved in the biofilm that leads to destruction of biofilm, and these are the mostly these are the external factors. For example, change in pH, oxygen availability, nutrient availability, temperature. These all are factors that can lead to changes in the biofilm. लेकिन जैसे जैसे बायोफिल्म में इजाफा हो, इसकी थिकनेस में इजाफा होता जाता है, दैन व्हाट विल हैपन कि जो सरफेस के सेल्स होते हैं दे स्लोड ऑफ, वो उतरना शुरू हो जाते हैं, इर्द गिर्द प्लेसेस पर फैलना शुरू हो जाते हैं. एंड बेसिकली दीज सेल्स एक्ट एज इनोकुलम. ये सेल्स इनोकुलम के तौर पे काम करते हैं. दे कैन
ट्रांसपोर्ट टू एनी अदर सरफेस एंड वेयर दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म। इसलिए वो कहते हैं ना इन्फेक्शन फैल गया है, तो उससे यही होता है कि ये स्लोइंग ऑफ सेल्स जो हैं ये उतर जाते हैं और ये कहीं पर भी नियर बाय या फिर कहीं दूर एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये नई बायोफिल्म जो है वो बनाते हैं। अब बायोफिल्म कितनी देर तक रहेगी, इसका ड्यूरेशन, इसकी जो है वो थिकनेस और इसकी आप ये कह सकते हैं कि लॉन्गेविटी, ये सब डिपेंड करता है ऑन द सरफेस प्रॉपर्टीज़ दैट ऑन विच सरफेस बायोफिल्म इज़ फॉर्मिंग। कुछ सरफेसेस बहुत सपोर्टिव होती हैं, दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म वेरी हैप्पीली, और कुछ सरफेसेस जो है वो इनर्ट हैं, वहाँ पे बायोफिल्म जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बनती हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि बायोफिल्म की फॉर्मेशन पर असरअंदाज हो सकते हैं। देन वी शैल स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड डिजास्टर्स ऑन माइक्रोबियल कम्युनिटी। व्हाट इज़ स्ट्रेस? Stress mean for the biofilm point of view, stress mean any abiotic factor or set of factor that which limits the production of biomass। कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि बायोमास की प्रोडक्शन को लिमिट कर दे एंड दैट फैक्टर इज़ एबायोटिक। ये फैक्टर एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, यानी हमने डेलिबरेटली जो है वो बायोसिडल स्प्रे कर दिया है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर दिया है, तो ऑब्वियसली बायोफिल्म की थिकनेस कम होगी, बहुत से माइक्रोब मरना शुरू हो जाएंगे। एंड सम ऑफ द फैक्टर्स आर नेचुरल। टेम्परेचर बहुत चेंज हो गया है, बहुत लो हो गया है, बहुत हाई हो गया है, या प्रेशर ज़्यादा हो गया है, या कोई भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ गया है, फायर लग गई है, तो उस केस में ये फैक्टर जो है वो नेचुरल होगा। इट मीन स्ट्रेस कैन बी एंथ्रोपोजेनिक एंड स्ट्रेस कैन बी natural, but in both of the cases stress affect biofilm exponentially। स्ट्रेस जो है वो बायोफिल्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब ये स्ट्रेस बायोफिल्म को कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगी, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटेंट एंड रैपिडिटी ऑफ द स्ट्रेस। अगर स्ट्रेंथ रैपिड है, तेज़ी से है, तो ये इसका अफेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर ये स्लो है तो इसका अफेक्ट कम होगा। फॉर एग्जांपल तेज़ी से टेम्परेचर चेंज हो गया है तो बहुत से सेल मर जाएंगे, बहुत से बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर स्लोली टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस केस में डेथ रेट ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज बैक्टीरिया विल अडैप्ट देमसेल्व्स टुवर्ड द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो रैपिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड इज़ द एक्सटेंट। ना अगर एक्सटेंट ज़्यादा है, बहुत जैसे कि टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ गया, 20 डिग्रीज़ का एकदम से चेंज आ गया है, तो स्ट्रेस का इफेक्ट एक्सटेंट ज़्यादा है, इस केस में भी डिज़ास्टर ज़्यादा होंगी। और अगर जो है वो एक्सटेंट कम है तो उस केस में ये यानी माइनर चेंज है 5 to 6 डिग्रीज़ का, तो उस केस में चेंज इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन स्ट्रेस का अफेक्ट जो है वो यूक्रियोटिक सेल पर ज़्यादा होता है और प्रोक्रियोटिक सेल पर कम होता है, क्योंकि प्रोक्रियोटिक सेल जो हैं उनकी लिमिट इतनी ज़्यादा, उनकी जो एबायोटिक फैक्टर है उसके लिए उनकी लिमिट इतनी नैरो नहीं होती है, जबकि जो बायोटिक फैक्टर है जो यूक्रियोट है उसके लिए उनकी लिमिट बहुत नैरो होती है, यानी वो नैरो टेम्परेचर में रह सकती हैं, नैरो प्रेशर में रह सकते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जबकि प्रोक्रियोट जो है वो ऑक्सीजन की वाइड रेंज को बर्दाश्त कर सकती हैं, वो टेम्परेचर की वाइड रेंज को बर्दाश्त कर सकती हैं। तो स्ट्रेस का इफेक्ट जो है वो प्रोक्रियोट्स पर कम है। लास्टली हम बात करेंगे कुछ माइक्रोब्स, कुछ प्रोक्रियोट्स ऐसे होते हैं जो डेलिबरेटली हाई स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि थर्मो एसिडोफाइल्स, हाई टेम्परेचर पर और एसिडिक कंडीशन में रहते हैं और वो इसके लिए अडेप्टेड है। बैरोफाइल्स जो कि हाई प्रेशर पर रहते हैं वो इसके लिए अडेप्टेड हैं। तो ऐसे माइक्रोब बेसिकली ऐसी जगह इसलिए चूज़ करते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट इसलिए चूज़ करते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स, क्योंकि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं। वो ऐसी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ कोई और नहीं रह सकता, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंपटीशन। वो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ऐसी प्लेसेस जो हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो ये आप इसको पढ़ लेंगे और इसके बाद द टॉपिक डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पॉपुलेशन। हम बायोफिल्म में पॉपुलेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका ये आप लोगों ने खुद से पढ़ना है। ये
टॉपिक। और उसके बाद आप लोग यूट्यूब में अपनी अटेंडेंस भी मार्क किया करें, लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप वहीं पूछ सकते हैं। और आप जैसे कि ये टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आप सबने इसको पढ़ना है और इसमें से जो क्वेश्चन आपको आपके जहन में आए, जिस बात की समझ ना आए, तो वो आप मुझसे वहीं पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।